السلام علیکم۔ حیات تشنگی بائے حورین فاطمہ، قسط نمبر 11۔ بغیر اجازت کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں، مان جاؤ نا پلیز، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ اب میں مذاق تم لوگوں کے ساتھ نہیں تو کیا باہر کے لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ اگر تم لوگ بدلہ لینے سے پہلے ایک بار گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ ہی لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس کی آخری بات پر زائرہ اور عذبہ نے مشال کی طرف دیکھا تھا، جو ان کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی۔ دیکھو، تم لوگوں کو مجھ سے بدلہ ہی لینا تھا تو میری فیورٹ شرٹ جلا ڈالتے یا پھر مجھے کیچڑ میں دھکا دے دیتے۔ کیچڑ بیچارے کو میرے اوپر دھکا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے لگا تھا وہ وقتی اسے اگنور کر رہی ہیں، لیکن وہ تو اس سے پکے والا ناراض ہو گئی تھیں، اور اب ہاشم شاہ کا ان تینوں کے بغیر دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو عذبہ اور مشال اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی آتی جاتی تھی، لیکن آج تو اس کے ساتھ نہ آئی تھیں نہ گئی تھیں۔ ان کے ناراض ہو جانے سے اس کی لائف میں بوریت چھا گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، آئس کریم کھاؤ گے تم لوگ؟ میں تم لوگوں کو وہ لا دیتا ہوں۔ اگر کچھ اور کھانا ہے تو بھی بتا دو، میں وہ لا دوں گا۔ وہ انہیں منانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید وہ اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ ہائیسی لالا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ نہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، نہ ہی ہمیں آپ کی معافی چاہیے۔ زائرہ نے اسے وہاں سے واپس بھیجنا چاہا۔ یار، ایک دوسرے کو تو معاف کر ہی چکی ہو تو اب مجھ معصوم کو بھی کر دو۔ میرا اس بھری دنیا میں تم لوگوں کے سوا آخر ہے ہی کون؟ اب ہاشم شاہ نے ان تینوں کو بلیک میل کرنا چاہا۔ مشال تو شاید اس کی بک بک سن کر تھک چکی تھی، اس لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس گئی۔ عذبہ، میری پیاری بہن، معاف کر دو۔ اگر تم نے معاف کر دیا تو یہ دونوں بھی مجھے معاف کر دیں گی۔ اب وہ ان دونوں کو چھوڑے عذبہ کی طرف ہوا۔ ہاشم لالا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہم کسی سے ناراض نہیں ہیں، اس لیے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے رخی کی حد کی گئی تھی۔ وہ اداس شکل لیے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور جا کر ہال میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ایسے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ بی جان نے اس کے پاس بیٹھتے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بی جان، صبح سے آپ کی پوتیوں کو منا رہا ہوں، لیکن وہ ہیں کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہیں۔ میں نے تو بس مذاق کیا تھا، لیکن وہ سیریس ہو کر بیٹھ گئیں۔ بی جان، اب آپ ہی بتائیں، میرا زائرہ اور جاسم لالا کے علاوہ دنیا میں ہے ہی کون جس سے مذاق کروں، جس سے اپنی باتیں منواؤں؟ میں نے سب کی ڈانٹ بھی سن لی ہے۔ جاسم لالا نے جو سزا دی تھی وہ پوری کر لی ہے۔ وہ نیچے بی جان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر سر ٹکائے بتانے لگا۔ وہ ان تینوں کی بے رخی سے سچ میں اداس ہوا تھا۔ اسے سب سے دکھ اپنی بہن کے ناراض ہونے کا تھا۔ تم ٹینشن نہ لو میرے بچے، مان جائیں گی، وہ ابھی غصے میں ہیں۔ بی جان نے اسے حوصلہ دیا۔ گل، جاؤ، مشال، زائرہ اور عذبہ کو بلا کر لاؤ۔ بی جان نے ان تینوں کو بلانے کے لیے ملازمہ کو بھیجا۔ بی جان کے بلانے پر اب وہ تینوں ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ بیٹا، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ہاشم شاہ تم تینوں کو صبح سے منا رہا ہے اور تم تینوں معاف نہیں کر رہیں۔ بیٹا، کوئی اتنی بار معافی مانگ لے تو معاف کر دینا چاہیے نا۔ بی جان نے
उन तीनों को समझाया। बीजान ने हमेशा अपने बच्चों और पोते पोतियों को हमेशा साथ में हंसते मुस्कुराते एक साथ रहते पाया था, तो अब क्यों ना अपनी पोतियों को समझाती। लेकिन बीजान हायसी लाला की वजह से अजवा को जासिम लाला ने बहुत डांटा। वो इतना रोई और बीमार भी हो गई। ज़ायरा ने बीजान को हायसिम शाह की गलती बताई। हम मानते हैं बच्चे, हायसिम शाह ने गलती की, लेकिन उसे उसकी गलती की सज़ा भी मिली और वो मुआफ़ी भी मांग चुका है। बीजान, मैंने तो इन्हें कहा है माफ़ कर दो, उसके बदले में जो कहोगी करूँगा। सच है इसी लाला? हम जो कहेंगे आप वो करेंगे? हायसिम की जो कहूँगी करूँगा वाली बात पर ज़ायरा की आंखें चमकी थीं। हाँ मेरी प्यारी बहन, जो कहोगी करूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें तो पता ही है तुम और जासिम लाला ही मेरा सब कुछ हो। तुम दोनों की नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उठकर अपनी बहन के पास आया था। सॉरी लाला, मैंने कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव किया आपके साथ। वो अपने लाला के सीने से लगी। उसकी भी कुल्ले कायनात उसके दोनों लाला ही थे। माफ़ कर दिया है तो ये मत सोचिएगा हम बदले में कुछ नहीं लेंगे। वो अपने लाला को माफ़ तो कर चुकी थी और अब उसके लाला बड़ी मुश्किल से हाथ आए थे। अब बदले में कुछ लेना तो बनता ही था। सॉरी अजवा, हायसिम शाह ने उससे भी माफ़ी मांगी। लाला, आप हमें माफ़ कर दें, हम किसी और की गलती की सज़ा आपको दे रहे थे। वो बदले में अजवा के सर पर हाथ रख गया। और चुड़ैल तुम जाओ, माफ़ किया, तुम भी क्या याद रखोगे। मिशाल ने भी खुले दिल का मुजाहिरा किया। बीजान तो अपने बच्चों को पहले जैसा होता देख खुश थी। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हायसिम शाह, बच्चियाँ जो कहें अब उनकी बात मान लेना। पहले ही पिछले 2 दिनों से हमारी बच्चियाँ उदास हैं। वो हायसिम शाह को हुक्म देती उठकर अपने कमरे में चली गईं। बताओ चुड़ैलो, क्या करना होगा मुझे? उसने ज़ायरा के बाल खींचते पूछा। क्या है लाला, मैं फिर से आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। ज़ायरा ने मुंह बनाया। अच्छा अच्छा, नहीं करता, मुंह तो ना बनाओ। चलो अब बता भी दो मुझे क्या करना है। हायसिम शाह जानने के लिए तजस्सुस हुआ, आखिर वो उससे क्या करवाना चाहती हैं। लाला, हम चाहते हैं पहले आप हमें डेरे पर घुमाएं, फिर आप हमें खेतों में घुमा फिरा कर लाएं। ज़ायरा ने अपना प्लान हायसिम शाह के गोशगवार करवाया, जिसे सुनकर उसे झटका ही लगा था। उन तीनों को डेरे पर लेकर जाना मतलब कुल्हाड़ी को खुद अपने पैरों पर मारने की दावत देना। जो तुम लोग कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम तीनों को डेरे पर नहीं लेकर जा सकता। कहो तो शहर घुमा लाता हूँ या फिर घर पर जो मंगवाना चाहो मंगवा लो, लेकिन वहाँ नहीं। हायसी लाला, आपने कहा था हम जो कहेंगे आप वही करेंगे और हमारी बात भी मानेंगे। अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं। लेकिन तुम तो मुझे कुएं में कूदने का कह रही हो। अगर दादा साईं या जासिम लाला को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। वो मेरी टांगें तोड़कर घर पर ही बिठा देंगे। वो बहुत गुस्सा होंगे। अगर फिर भी तुम लोग जाना चाहते हो तो जासिम लाला या फिर दादा साईं से परमिशन लो, मैं ले जाऊंगा। वो अच्छी तरह जानता था अगर वो उन तीनों को बग़ैर बड़ों की इजाज़त के ले गया ना तो उसकी खैर नहीं। डेरे पर और खेतों में
बहुत सारे मर्द होते हैं। दादा साईं और जासिम लाला को बिल्कुल गवारा नहीं उनके घर की औरतें यूं मर्दों के बीच जाएं। उस दिन अजवा की भी इसीलिए इंसल्ट हुई थी। कुछ नहीं होता हाइसी लाला, जासिम लाला तो वैसे भी शहर गए हुए हैं। दादा साईं और ताया साईं भी घर पर नहीं हैं। अरीद लाला भी ऑफिस गए हुए हैं। हमें कोई नहीं देखेगा। हम उनके आने तक वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। तुम लोग जासिम लाला से इजाज़त लो, फिर ही लेकर जाऊंगा। वो भी अपनी बात पर कायम रहा। चलो अजवा, मिशाल, हमें हाइसी लाला की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही मान गए। मुझे तो पहले ही पता था ये हमारी बात नहीं मानेंगे। एवं ही हवा में तीर छोड़ रहे हैं। इनसे ज़्यादा तो कोई डरपोक नहीं। हम लड़कियां होकर नहीं डर रही और ये मर्द होकर डर रहे। चलो, इनकी मिन्नतें करना फजूल है। चलते हैं यहाँ से। मिशाल ने भी उस पर तंज के तीर बरसाए। तुम तीनों अच्छी तरह जानती हो दादा साईं और जासिम लाला तुम तीनों को मुआफ़ कर देंगे, लेकिन मेरी खैर नहीं। उसने एक बार फिर अपनी ढीठ बहनों को समझाना चाहा। अगर ना पकड़े गए फिर तो मज़े हैं, अगर पकड़े गए तो सब एक दूसरे का साथ देंगे। मुश्किल में अकेला छोड़कर नहीं भागेंगे। तुम तीनों वादा करती हो तो ठीक है, मैं ले चलता हूँ। हासिम शाह अच्छी तरह जानता था जो उस दिन अजवा अपनी दोस्त को मुश्किल में अकेला छोड़कर भाग गई थी, वो उसे भी छोड़कर जा सकती हैं। इसलिए तीनों से वादा लेना ज़रूरी समझा। मैं तो पहले भी कभी किसी को मुश्किल में अकेला छोड़कर नहीं भागी, ना ही अब भागूंगी। अजवा ने मिशाल और ज़ायरा को तंज करने के साथ हासिम शाह को यकीन दहानी करवाई। हम दोनों भी नहीं भागेंगे। ज़ायरा और मिशाल ने भी यकीन दहानी करवाई। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम तीनों तब तक अपनी चादरें उठाकर ले आओ। वो उन्हें कहता बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि वो आने वाले वक्त से अनजान अपनी अपनी चादरें लेने के लिए भागी। ये मंज़र तारीकियों में डूबे जंगल के बीचों बीच एक कमरे का था, जो ना जाने कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था। कमरे में मौजूद कुछ लोगों ने एक आदमी को रस्सियों से जकड़कर बांधा हुआ था। वो मुसलसल 2 दिनों से उसे टॉर्चर करके उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। सर, हम मुसलसल 2 दिनों से इसे टॉर्चर कर रहे हैं और सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सच उगलने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है अब आपको आना ही होगा। आप आकर इससे अपने तरीके से सच उगलवाएं। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कमरे में मौजूद एक आदमी ने अपने बॉस को कॉल करके सब बताया कि उस आदमी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम इंतज़ार करो। बॉस आ रहे हैं, अब वो खुद ही इससे सच उगलवाएंगे। कॉल पर बात कर रहे आदमी ने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को भी बताया, जिस पर उन्होंने झुरझुरी ली। वो अच्छी तरह जानते थे उनका बॉस अब कैसे सच उगलवाएगा। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। आसमान से चांद की चांदनी भी कहीं गायब थी, क्योंकि ये तारीक रातों के तारीक दिन थे। जंगल में चारों तरफ बस जानवरों की ही आवाज़ें गूंज रही थीं। वहाँ पर किसी बंदा बशर का नामो निशान तक ना था,
क्योंकि इस छोटे से खंडरनुमा घर को जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर बनाया गया था ताकि यहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो और वह सुकून से अपने काम को अंजाम दे सकें। उन लोगों ने अपने बॉस के आने तक एक बार फिर उससे पूछताछ की, लेकिन वो ज़ुबान खोलने का नाम नहीं ले रहा था। उन सबको इस खौफनाक खामोशी में बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी जो धीरे धीरे करके उनके करीब आ रही थी। उसके बाद एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला था और कमरे में उन्हें 3 हुडी पहने अफराद दाखिल होते दिखाई दिए थे। कमरे में रोशनी ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से उन्हें कमरे में दाखिल होने वाले अफराद के चेहरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। कमरे में मौजूद अफराद इज्जत से आने वाले 3 अफराद को सलाम करते साइड पर जाकर खड़े हो गए थे और उन्हें रास्ता दिया था। वो तीनों उसके इर्द गिर्द घेरा बनाए खड़े हुए थे। उसके सामने मौजूद शख्स ने सिगरेट सुलगाए, चेयर खींचकर टांग पर टांग चढ़ाए, उस पर बैठकर सिगरेट के 2-3 गहरे गहरे कुछ लिए थे। तुम्हारे पास इस सिगरेट के ख़त्म होने तक ज़ुबान खोलने का वक्त है, उसके बाद हम अपने तरीके से तुम्हारी ज़ुबान खुलवाएंगे। कुर्सी पर विराजमान शख्स ने उसे एक और मौका दिया था, लेकिन शायद रस्सियों से बंधा हुआ शख्स भी ढीठ था जिसने ज़ुबान नहीं खोली थी, जबकि सामने मौजूद शख्स की सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। अब उसने सिगरेट को नीचे फेंककर अपने पाँव से मसला था और साथ ही उसके जबड़ों को अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में लिया था। हम तो तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगे। उसने कुर्सी के पीछे खड़े दोनों आदमियों को इशारा किया था जिन्होंने उसके ऊपर किसी चीज़ के छींटे फेंके थे, जिससे उस आदमी की चीखें खामोशियों में डूबे हुए जंगल में गूंजी थीं। अब भी बताओगे कि नहीं? उसने आंखों में टपकती वहशत लिए सामने बंधे आदमी की आंखों में आंखें डाले करा कर पूछा था। हुडी में मौजूद शख्स की आंखें देख वो फ़ौरन से पहचान गया था ये कौन है, और अब उसको अपने अंजाम को सोचते रोंगटे खड़े हुए थे। वो जो 2 दिन के किए जाने वाले टॉर्चर से नहीं डरा था, उसकी आंखों में टपकती वहशत देखकर उसकी सांसें थमी थीं। उसे अपनी मौत करीब से आती दिखाई दे रही थी। हम आपको कह रहे हैं ये ऐसे नहीं मानेगा इसकी। तो मैं कुर्सी के पीछे खड़ा आदमी आगे बढ़ने लगा था, लेकिन कुर्सी पर बैठे शख्स के हाथ के इशारे से तनबिया करने पर रुका था। इन जैसे लोगों के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। अब वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। पीछे मौजूद शख्स के हाथ से बोतल पकड़े उसका ढक्कन खोलते उसमें मौजूद महलोल पूरे का पूरा उसके पाँव पर अंडेल डाला था, जिससे एक बार फिर वो कमरा उसकी चीखों से गूंज उठा था। अब भी बताओगे या नहीं? हम अच्छी तरह जानते हैं तुम उस वाक़ये के बारे में सब कुछ जानते हो। अगर जानते हो तो सब सच सच बता दो, वरना उसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। फिर तुम्हारी मौत से कोई वास्ता नहीं होगा। उसने आखिरी बार वार्निंग देते कांटदार लहजे में पूछा था। अब की बार उसकी आंखों में अजीब ही वहशत और जुनून था कि वो सच बताए बगैर ना रह सका। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हम बताओ। उसने कुर्सी पर बंधे आदमी के गिर्द घूमते एक बार फिर अपनी सिगरेट सुलगाई थी। अब की बार बोलो तो इस बात का ध्यान रखना, सिगरेट ख़त्म होने तक तुम हमें सब कुछ सच सच बता देना, वरना इस बार सिगरेट के ख़त्म होने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म होगी।
اتنا تو تم جان ہی گئے ہوگے میں کتنا شفاق دل انسان ہوں، مجھے تمہیں موت دیتے وقت ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، اب جلدی سے بولنا شروع کرو۔ ساتھ ہی اس نے پیچھے کھڑے شخص کو اشارہ کیا تھا جس نے جلدی سے موبائل نکالتے ریکارڈنگ آن کی تھی۔ مجھے اس سب کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن آج سے کچھ سال پہلے مجھے یہ کام ملا تھا جسے ہم 5 آدمیوں نے مل کر انجام دیا تھا۔ ہمیں بس ایک جگہ کا پتہ دیا گیا تھا اور گاڑی کا نمبر دیا گیا۔ گاڑی میں موجود افراد کو اغوا کر کے ہمیں اس جگہ پہنچانے کا حکم ملا تھا، اور پھر ایک دن جب وہ گاڑی درگاہ کی طرف جا رہی تھی تو ہم نے اس پر حملہ کر دیا اور گاڑی میں موجود افراد کو گاڑی سے باہر نکال کر گاڑی کو آگ لگا دی تاکہ لوگوں کو وہ ایک ایکسیڈنٹ لگے۔ اس کے بعد ہم نے ان افراد کو اس جگہ پر پہنچا دیا تھا۔ ہم ہفتے بعد اس جگہ پر واپس بھی گئے تھے، لیکن وہ جگہ جل کر خاک بن چکی تھی۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ وہ لوگ کہاں گئے، زندہ بھی ہیں یا اسی جگہ کے ساتھ جل کر خاک ہو گئے۔ تمہارے باس کا کیا نام تھا؟ مجھے نہیں پتہ، اس کا نام وہ خود آگے نہیں آتا تھا، اس کا خاص آدمی ہی سب کام کرتا تھا، ہم نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کرسی کے پیچھے کھڑے شخص نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ انہیں امید کی جو کرن نظر آئی تھی اس کی جل جانے والی بات پر ختم ہو گئی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے نا تم اپنے باس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یا پھر تم کچھ ہم سے چھپا تو نہیں رہے؟ اگر ایسا ہے تو تم اپنے انجام سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں اور کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اس نے ہنکارا بھرتے سگریٹ کو نیچے پھینکتے کچلا تھا، اور اس شخص نے سکون کا سانس لیا تھا جو وہ سگریٹ ختم ہونے سے پہلے ہی اسے سب بتا گیا تھا۔ اس سے مزید معلومات لو اور پھر اس کا جو کرنا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دنیا کو اس کے جیسے درندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگل میں موجود جانور بھوکے ہوں گے، رات تک ان کی دعوت کا انتظام کر دو۔ وہ پاس کھڑے آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنی لہولہان آنکھوں سے حکم دیتے پیچھے کھڑے آدمیوں کو حکم دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دونوں آدمی بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلے تھے۔ وہ تینوں ایک بار پھر تاریکی کا حصہ بنے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے اس آدمی کی چیخیں سنائی دی تھیں جس سے ان کے